Today we will discuss about first law of thermodynamics. In the last lecture we are discussing about that what are different terminologies we use in thermodynamics, which are including processes like isothermal, adiabatic, isobaric and isochoric process. And apart from this, what is system, surroundings, how many types of system are there, open, closed, isolated system, which we have discussed with example. Today we will discuss about first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy. Okay, so what do you understand by law of conservation of energy? Law of conservation of energy means energy can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. It is always conserved. Means what? Means the energy can only transformed from one form to another form. So you can see a lot of example in your daily life related to first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics includes energy transformation. Like say for example, what we are doing, we are at home in like summer season, we are using fans. The fan is run by electric energy, so we are providing electric energy to the fan, and that is converted into mechanical energy. And apart from this, the generation of electricity is by mechanical energy to electric energy. And apart from this, we use wind turbines for using converting wind energy into electric energy. We are also using sunlight, and that sunlight is also converting the energy, that is light energy, into electric energy. So these all are the transformation of energies. So according to this law, that is first law of thermodynamics, that energy can neither be created nor be destroyed. It can only transform from one form to another form. Means there may be a simple form of a particular energy that can convert into second form of energy. So energy, it's very, this is a very simple law to understand, and you can see a lot of daily life example in first law of thermodynamics. So let us consider a system. Okay, if we consider a system that is shown in picture, and if the internal energy is फर्स्ट इंटरनल एनर्जी जो इनिशियल है वो U1 है, और हीट जो एब्जॉर्ब करी है सिस्टम में, अगर हम हीट सिस्टम को देते हैं बाहर से तो वो पॉजिटिव होती है, अगर सिस्टम से अगर हीट हम लेते हैं, हीट इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम और हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, वो नेगेटिव होती है. नाउ वी हैव डन सम अमाउंट ऑफ वर्क. अगर हमने कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करा सिस्टम पे, तब आपके पास वर्क डन जो है वो W है, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ वो U1 से U2 हो गया भाई. अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज डेल्टा यू. डेल्टा यू, या फिर आप इसको ऐसे समझिए, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किन किन चीज़ों की वजह से हुआ. तो इंटरनल एनर्जी चेंज U2 जो है वो इंटरनल एनर्जी पहले कुछ थी, हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट दी और कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ. तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो टोटल किसके इक्वल रहेगा, U1 प्लस Q प्लस W. इस चीज को आप ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए कि आप एक ग्लास ऑफ वाटर को हीट कर रहे हैं. ओके, व्हेन यू आर हीटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन अ गैस स्टोव, तब आप उसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं अभी, and that heat is converting the internal energy U1 to U2 of the system. वो particles की motion को बढ़ा रहा है जिसकी वजह से internal energy change हो रही है. ओके, अब internal energy change हुई, heat absorb हुआ, तो कुछ ना कुछ amount of work system करेगा, और उस वर्क डन का हम कैसे पता करते हैं. अब वाटर जो है वो वेपराइज हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है. दैट मीन्स जो टोटल इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, after giving some amount of heat and after doing some amount of work on the system, that is U2 is equal to U1 plus Q plus W. अब U2 minus U1 is internal energy change, that is delta U. Delta U is equal to Q plus W. Okay, Q is the heat absorbed and W is the work done on the system. अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो वर्क हमारे पास नेगेटिव रहता. अगर हम सिस्टम पे कुछ वर्क कर रहे हैं, ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, तब हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव रहता है. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू
is your first law of thermodynamics in mathematical form. Delta U is internal energy change, Q is heat absorbed, W is the work done on the system. अब W जो है वो किसके इक्वल होता है भाई, वर्क डन होता है माइनस इंटू पी डेल्टा वी. P आपका प्रेशर है और V आपका चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा V. P डेल्टा V जो है उसको आप बोलते हो वर्क डन माइनस P डेल्टा V. ये जो है भाई वर्क डन बाय अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है. Okay, that we have discussed in our last lecture that work done on the system is minus of P delta V. So the above equation can be written as how? above equation को हम कैसे लिख सकते हैं, W की जगह हमने माइनस पी डेल्टा वी पुट करा, तब आपके पास डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी आ गया. डेल्टा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वॉल्यूम को. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकली डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ओके, सो नेक्स्ट इज इंथैल्पी. इंथैल्पी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब इंथैल्पी होती क्या है, इंथैल्पी बेसिकली इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क. प्रेशर वॉल्यूम वर्क मतलब जो हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिया था भाई एक सिलेंडर में, और इस पिस्टन पे हमने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करा था, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ चला गया. वॉल्यूम पहले V1 था वो V2 हो गया. तो आपके पास जो प्रेशर ऊपर से लग रहा है वो डिसाइड कर रहा है कितना चेंज इन वॉल्यूम हुआ है. तो वर्क डन किसके इक्वल रहेगा, माइनस ऑफ पी डेल्टा वी के इक्वल. ओके, सो इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी होती है इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी. इंटरनल एनर्जी मतलब भाई जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. तो इंथैल्पी इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड pressure volume work done. Okay, so next is you can see here how we can calculate that is enthalpy of a system. So enthalpy of a system calculate करने के लिए हमारे पास जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, आपके पास कोई रिएक्शन है A to B और उस रिएक्शन में HA इंथैल्पी है और HB इंथैल्पी B के है भी. अब इंथैल्पी किसके बराबर होती है, H इज इक्वल टू यू प्लस PV. अब अगर मैं बात करता हूं HA की, तो HA में क्या रहेगा, अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो UP प्लस PVP. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख रहे हैं, इसमें जो पिक्चर में दिखाया हुआ है इसको हमने ऐसे लिखा है कि जैसे हमारे पास जो R जो आपके पास प्रोडक्ट के लिए इंटरनल एनर्जी है दैट इज UP और रिएक्टेंट के लिए UR. तो U प्लस PVP माइनस ऑफ U2 प्लस PVR ये आपके पास हो जाएगा. डेल्टा H किसके बराबर रहेगा भाई, प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया. तो डेल्टा H किसके बराबर आ गया, यहां से डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. डेल्टा H, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. और इंथैल्पी होता क्या है भाई, इंथैल्पी इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन. तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो इंथैल्पी चेंज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के बराबर रहेगा. अब अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो आपके पास डेल्टा एच क्यू पी के बराबर हो जाएगा भी. डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट दैट इज क्यू पी. अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू वी. ठीक है, नाउ वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एनआरटी. ये हमारे पास एक इक्वेशन है भाई, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी. मैंने आपको बहुत बताया था कि ये इक्वेशन बहुत जगह यूज होगी. हमने इसको सोल्व करा था 3 लॉस लेके, बोल्स लॉ, गिल्लू-साक्स लॉ एंड योर एवोगैड्रोस लॉ, दैट पी वी इज इक्वल टू एनआरटी. अब पी डेल्टा वी किसके बराबर रहेगा, आर और टी आर कॉन्स्टेंट. आर हमारे पास कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो बदलाव किसमें होगा भाई, सिर्फ डेल्टा एन बदलेगा. तो हमारे पास P डेल्टा वी डेल्टा एन जी आर टी के बराबर हो जाएगा. अब डेल्टा एन जी क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी इज चेंज इन गैसियस मोल. सिर्फ
अगर नीचे किसी रिएक्शन में गैस लिखा हुआ है तभी हम डेल्टा एन जी यूज करेंगे। जैसे अगर मुझे डेल्टा एन जी N2+3H2 इज गिविंग 2NH3 के लिए निकालना है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट तो 2 है, रिएक्टेंट क्या है 3H2 और एक N2, 4 हो गया, तो -2 आ गया। ऐसे ही आप इंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, अगर आपके पास ये चीज़ें गिवन है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी is your enthalpy. Okay, so enthalpy is a very important term, and that is used, and most of the time numerical is asked from enthalpy. So enthalpy is sum of internal energy and pressure volume work done. Delta H is equal to delta U plus P delta V is the mathematical expression for calculation of delta H. ओके, इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी चेंज, वॉल्यूम चेंज और प्रेशर पता होना चाहिए। और अगर आपके पास प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं पता है, तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चेंज पता है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी इज योर एक्सप्रेशन। ओके, सो यू कैन सी हेयर, अगर डेल्टा एन जी नंबर ऑफ चेंज ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है, तो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो डेल्टा एच इंथैल्पी जो है वो किससे बड़ी हो जाएगी भी, इंटरनल एनर्जी से। अगर नेगेटिव है तो इंटरनल एनर्जी बड़ी हो जाएगी किससे, इंथैल्पी से। अगर डेल्टा एन जी 0 है, इसका मतलब क्या है, हम तो गैसियस नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना, जी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हमें कोई भी लिक्विड एंड सॉलिड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करना है। ओके, सो नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। एज अ नेम सजेस्ट, कैपेसिटी टू हीट मीन्स व्हाट, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है हमारे पास, उस सब्सटेंस की, मान लें कि हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर ही है, उस ग्लास ऑफ वाटर की जो टेम्परेचर है उसको हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। उसके लिए हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, सॉरी उस टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट देनी पड़ेगी, वो होती है हीट कैपेसिटी। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी, एंड दैट हीट कैपेसिटी इज रिटन एज C। और हीट कैपेसिटी हम हीट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई, हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर देंगे तो मैथमेटिकली हीट कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब भाई स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट में हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्पेसिफिक कर देते हैं। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, and specific heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a substance. How much substance? Temperature of 1 gram of substance, या फिर temperature of 1 mole of substance। temperature of जिस टाइम हम अमाउंट को स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है अभी, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ Q की वैल्यू हीट की, तो C इंटू डेल्टा टी आता है। अगर मैं C इंटू डेल्टा टी को मास ऑफ सब्सटेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी 2 टाइप की होती है अभी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने देख लिया यहाँ पे। अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम CV और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को CP से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, वो हीट कैपेसिटी जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, और वो किसके इक्वल होती है। अभी आप लोगों के लिए एक टास्क है, दैट कैलकुलेट हाउ CV इज इक्वल टू du by dt एंड हाउ CP इज इक्वल टू dh by dt।
सी वी किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम हैज टू बी कांस्टेंट, कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है टेम्परेचर के साथ, और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं इंथैल्पी, यहाँ पे भी ये इंथैल्पी आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, so that is known as CP, heat capacity at constant pressure. So there are two type of heat capacities, one is heat capacity at constant pressure and another is heat capacity at constant volume. Constant pressure is change in enthalpy with respect to temperature and constant volume is change in internal energy with respect to temperature. Okay, next is molar heat capacity. So molar heat capacity क्या होती है, molar heat capacity भी amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance. अब अगर हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो हीट चाहिए उसे हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी को cm से रिप्रेजेंट किया जाता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस विच इज 1 ग्राम, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. एंड इफ द सब्सटेंस टेकन इज 1 मोल देन इट इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी. एंड मोलर हीट कैपेसिटी इज द हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल and Cm is equal to C by N. N is your total number of moles, C is your heat capacity. Okay. If the volume of substance is kept constant and heat is added to the system, just think about a thing. अगर आपने वॉल्यूम को kept constant रखा है, तो अभी हमने पढ़ा था, तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ पी डेल्टा पी. वॉल्यूम चेंज अगर आपने क्या रखा, 0 रखा, तो वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन बिल्कुल भी नहीं रहेगा. वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा. अब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज यूज्ड टू कंप्लीटली इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी. Now just see the thing, if the volume is kept constant minus P delta V is equal to 0. So आपका heat absorb जो करा है सिस्टम में, डेल्टा U is equal to Q plus W, हमारे पास क्या था भी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, डेल्टा U is equal to Q plus W. अब वर्क डन हमारे पास 0 हो गया, तो इंटरनल एनर्जी जो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज होती है. अगर प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं देन द एनर्जी सप्लाइड, प्रेशर कांस्टेंट रखा तो एनर्जी जो सप्लाई हो रही है वो सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज में यूज हो रही है, और जो थोड़ी सी बचती है वो किसमें, इंटरनल एनर्जी में यूज हो रही है अभी. तो बेसिकली हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम जो है सीपी एंड सीवी को हम कैसे उनको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रोसीजर बताया हुआ है. अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन 0 रहेगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, दैट मीन्स W इज 0, तो डेल्टा U सिर्फ Q के इक्वल रहेगा, और Q क्या है, हीट, और हीट कैपेसिटी हमें निकालनी है. अगर हीट कैपेसिटी निकालनी है तो Q को डेल्टा T से डिवाइड करना पड़ेगा. सो डेल्टा U बाई डेल्टा T इज योर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, नाउ इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो हीट है वो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी. ठीक है, सो जो एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे चाहिए वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में तो सिर्फ क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज करना है. तो सीपी हमेशा सीवी से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा. ओके, now you can see here what is the relation between CP and CV. This is a very important relation and most of the people ask these relations in question paper. So heat capacity at constant volume CP and CV. अब भी हमारे पास जो CV है वो किसके, QV आपके पास किसके बराबर होता है, CV डेल्टा T या फिर डेल्टा U के बराबर. CP किसके बराबर होता है, डेल्टा H बाई डेल्टा T, तो CP डेल्टा T किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H के बराबर. अब CP माइनस CV किसके बराबर होता है, R के बराबर. ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा H किसके बराबर होता है अभी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है.
डेल्टा इंटू पी वी लिख दो आप, एक ही बात है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा आर टी भी होता है क्योंकि पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। ओके, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। ओके, तो सी पी डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा एच की वैल्यू क्या रखनी है हमने? डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। अब डेल्टा यू किसके इक्वल होता है भाई? सी वी डेल्टा टी के, तो सी वी डेल्टा टी यहाँ पे रख दिया। तो सी पी माइनस सी वी डेल्टा टी चारों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, हम उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो इज इक्वल टू आर इज योर करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर सी पी एंड सी वी। देखो आप लोगों को पता है सी पी किसके बराबर है? डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा? टी को उस तरफ ले जाएंगे, सी पी डेल्टा टी के बराबर, और डेल्टा यू सी वी डेल्टा टी के बराबर। नाउ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच यू प्लस डेल्टा पी वी होता है। अब डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस पी वी आर टी के बराबर भी होता है, डेल्टा आर टी भी होता है जी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी हो गया। ओके, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा वी की वैल्यू क्या है? सी वी डेल्टा टी। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, सिंपल सिंपल। आपने डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी जो हमने एक्सप्रेशन निकाली थी आर डेल्टा टी वाली, उसमें वैल्यूज पुट करनी है डेल्टा यू और डेल्टा एच की। उसके बाद हमारे पास सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। So this is the correct expression for relationship between heat capacity at constant volume and heat capacity at constant pressure. Okay, next we will discuss in our next lecture.